Assalamu alaikum class 3. How are you all? I hope you all are fine and having great time at your home and taking good care of yourself as well. It's 6th of April 2021. Day is Monday and you're having your science lesson with me. The chapter that we are discussing these days is about unit number 1, the human body. And in your previous video of science, we have talked that there are many internal and external body organs that are present in our body. So can any one of you tell me what are the external body organs? Very good. Your arms, your hairs, your skin, your legs, ears, eyes, these all are the external body organs. And what about the internal body organs? Well done. Your heart, kidneys, brain, skull, lungs, kidneys, intestine, these all are the internal body organs that are covered by your skin. So this was the revision about the previous lesson that we have discussed in our previous video of science. Your today's science topic is about something. Before writing the name of the topic, I want you to guess something that what we are going to learn today. I'm going to give you a clue for that. You have to listen it carefully. The body organ or a body part that we are going to talk in detail is something that has covered all your body. कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, आपके सर से लेकर आपके टोज तक, योर फीट, आपके फीट्स तक उसने आपको कवर किया हुआ है. एंड इट्स ऑल्सो हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट. तो कोई एक सेंस ऑर्गन है जो उस बॉडी पार्ट में भी है. कैन यू गेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Very good. You have guessed it very right. I am talking about the skin. Your skin is the very important and largest body organ. I was talking about your skin. Just have a look at yourself. आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपकी स्किन ने कवर की हुई है and everything is just hidden inside it. As I was talking about the 5 senses, now can you tell me which kind of sense you get from your skin? Well done, Mohit. We get the sense of touch from the skin. Sense of touch. अगर कोई भी पर्सन आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पर टच करे, यू आर एबल टू गेट इट. हाउ यू आर एबल टू नो, और आपको फील कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन दैट आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन. आपके स्किन पे जो सेंस ऑर्गन है, दे लेट यू नो अबाउट दैट. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन. एज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट हैज कवर्ड द बॉडी फ्रॉम ऑल द साइड्स and it also gives us the sense of touch. As the skin is the largest body organ, so there are some functions that are performed by the skin. हमारी skin कुछ function भी perform करती है. What kind of functions are performed by our skin? Let us just talk about them. Let's write the heading functions of skin. Can you help me to tell and just think for a while and then tell me that what do you think, what are the different functions our skin do? Functions हम कहते हैं a kind of job और a kind of work. कोई भी काम करना, उसकी कोई जैसे कोई working होती है उसको हम कहते हैं. So what do you think, what our skin do? वेरी गुड. एक पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था. इट गिव अस सेंस ऑफ टच. इट गिव्स अस सेंस ऑफ टच. इससे हमें सेंस ऑफ टच के बारे में पता चलता है. ओके,
It gives us sense of touch. Then it holds everything inside the body. Everything inside the body. हमारी बॉडी की हर चीज़ को स्किन ने होल्ड किया हुआ है. So the second very important job of the skin is it has hold everything inside our body. Okay, I think it's clear now. Okay, the third function of the skin is, see, आपको जो भी कोई डिजीज़ होती है, कुछ भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू फेस द स्किन. कोई भी जो जर्म्स अटैक करते हैं वो आपकी स्किन पे अटैक करते हैं. पहले हमारी स्किन में कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे बॉडी गार्ड होता है ना, हमारे स्कूल में ही देख लो आप, या अपनी सोसाइटी में देख लो, सोसाइटी की एंट्रेंस पे कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं. गार्ड्स की क्या ड्यूटी होती है? They have the duty to protect the society and the people who are living in that society. जैसे अगर आप अपने स्कूल के बारे में सोचो तो हमारे स्कूल में गेट के पास ही गार्ड अंकल होते हैं. उनका क्या काम होता है? सब बच्चों को प्रोटेक्ट करना, और किसी भी अननोन पर्सन को वो स्कूल के अंदर एंटर नहीं होने देते, क्योंकि वो हमारे स्कूल को, बच्चों को, सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. बिल्कुल इसी तरह हमारी स्किन में भी कुछ गार्ड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है हमारी स्किन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना. तो कोई भी जो जर्म आपकी बॉडी पर अटैक करता है वो सबसे पहले आपकी स्किन से फाइट करता है. और अगर तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट है, इम्यून सिस्टम जिससे आपकी बॉडी अच्छी, आप सर्वाइव करते हो, आपको वर्किंग में हेल्प आउट करता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं. अगर तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो जर्म्स के साथ फाइट करता है, जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता. बट अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो और आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी जर्म आपकी बॉडी पर अटैक करेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए कहते हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो स्ट्रॉन्ग हो और डिफरेंट काइंड के जर्म्स के साथ फाइट कर सके. जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी जर्म इजीली आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता और आप हमेशा स्ट्रॉन्ग और फिट रहते हो. ठीक है. सो द थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपनी बॉडी को ज़रा टच करो, जस्ट टच योर हैंड्स और टच योर नेक और टच योर बैक और योर लेग्स, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. आप फील करोगे कि आपकी बॉडी हल्की हल्की सी वार्म होती है, गर्म होती है. हमारी स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है. तो हमारी बॉडी हमेशा से हल्की हल्की सी हीटअप होती है, वार्म होती है. वाई इज़ दैट? आपको पता है हमारी बॉडी में हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है. अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, स्टिल योर बॉडी इज़ डूइंग सम वर्क. योर हार्ट इज़ पंपिंग, योर ब्रेन इज़ थिंकिंग, योर लंग्स आर वर्किंग बिकॉज यू आर ब्रीदिंग, liver is working because it has to make the blood, your intestine is working because healthy food has to extract. So every internal organ is working. When there is any kind of activity being taken place तो हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है. आप किसी भी चीज़ को, इवन दो अगर आपके हाथ अभी बिल्कुल नॉर्मल हैं, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट जॉइन योर हैंड एंड रब देम क्विकली. आप देखोगे कि 2 सेकेंड के बाद या 2-3 सेकेंड्स के बाद योर हैंड्स विल बी वार्मर, गर्म हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो. वेन एवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी देयर विल बी अ काइंड ऑफ हीट, मूवमेंट की वजह से हीट होती है. इसी तरह हमारी बॉडी भी हमेशा हल्की हल्की सी वार्म अप होती है. अगर तो ज़्यादा वार्म अप हो जाए, ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो आपकी बॉडी आपको लाइक कोई प्रॉब्लम होती है, आपको फीवर होता है. अगर ज़्यादा गर्म हो तो आपको फीवर होता है.
और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। मेंटेन का मीनिंग होता है कि ना तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा होने देती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है। लेट्स सपोज अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम एंटीबायोटिक्स। आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। वाई? बिकॉज योर स्किन विल कम टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादा हीटअप होने से आपको फीवर हो जाता है एंड दैट कैन कॉज डेथ ऑफ यू। बहुत ज़्यादा फीवर भी आपकी डेथ कॉज कर सकता है। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो वो भी आपकी डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होंगे आपकी बॉडी के। सो स्किन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट जो हम करेंगे, आई एम राइटिंग इट मेंटेन, your skin maintains the body temperature. TAIN, the body temperature. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी स्किन का मेंटेन करना स्किन का काम होता है। ओके, ऑल राइट, वी आर डन विद 3 पॉइंट्स। नंबर 4 पॉइंट इज दैट इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज। जैसे अभी हम पहले गार्ड्स की बात कर रहे थे, तो कोई भी जर्म आके जब अटैक करता है, वो आई फॉरगेट टू राइट इट ऑन द बोर्ड, कोई भी जर्म जो आपकी बॉडी पे आके अटैक करता है वो सबसे पहले स्किन के साथ फाइट करता है। अगर तो हमारी स्किन विन कर जाती है तो हमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी जर्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। बट अगर कोई जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी से फाइट करते हुए विन कर जाते हैं, देन दे विल एंटर इन आवर बॉडी और वो हमें डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो नंबर 4 पॉइंट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। डिजीज कहते हैं हम किसी भी बीमारी को। Let me check, like either I have written the correct spelling is DISEASES, diseases कहते हैं बीमारी को, कोई भी जो हमें मसला होता है, कोई भी बीमारी होती है वो। These are the major jobs of the skin, जो स्किन हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती है। Let us all just revise them. Number 1, it gives us the sense of touch. It holds everything inside our body. It maintains our body temperature and it protects our body from the diseases. हमारी बॉडी को diseases से protect करती है। I want to share very interesting information with you, class 3. Do you know हमारी बॉडी में डेली बेसिस पर 30,000 से 40,000 तक, what the number I am saying to you, from 30,000 to 40,000 dead cells। सबसे पहले मैं आपको सेल्स के बारे में बता देती हूँ। क्लास 3, हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल हम एक लिविंग पार्ट को कहते हैं जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। 1 सेल, 2, 3, 4 और ऐसे फिर मिलियन ट्रिलियन सेल्स मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं। तो हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से डेली बेसिस पर 30,000 से लेकर 40,000 तक डेड सेल जो हैं वो डेड होने के बाद स्किन से रिमूव हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में ऐसा होता है, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो आप देखते हो ना, आपकी स्किन ड्राई होने के साथ जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसमें से कुछ वाइट सी चीज़ निकल रही होती है। वो वाइट जो चीज़ हम देखते हैं दैट इज़ एक्चुअली द डेड सेल्स, जिनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है और वो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करते, तो वो ड्राइनेस के थ्रू हमारी बॉडी से उतर जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू गिव टू यू, आपके हेयर पर जो डैंड्रफ होती है, अगर आप अपने हेयर, आपके शायद आपके सर पे भी हो, क्योंकि आप छोटे हो तो आई एम नॉट श्योर कि आपके सर पे होगा या नहीं ड्राइनेस जो होती है, बट आपके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं या फिर आपके पेरेंट्स, उनमें से किसी के हेड पर डैंड्रफ ज़रूर होती है या फिर ड्राइनेस होती है, जिसको हम ऑयलिंग के थ्रू रिकवर करते हैं। वो जो ड्राइनेस है, जो डैंड्रफ है, जो वो डेड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब उनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, दे आर डेड, और वो हमारी बॉडी से निकल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डेड सेल।
तो डेली बेसिस पर हमें नहीं फील होता, बट 30,000 से 40,000 तक डेड सेल हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। जहाँ कहीं भी आप बैठते हो, सोफ़ा पर, बेड पर, और एनीवेयर वेयर यू आर सिटिंग, यू आर नॉट एबल टू सी, बट समटाइम यू आर एबल टू सी। जो आपकी ज़्यादा तब आपको पता चलता है जब आपकी स्किन पे ड्राइनेस होती है। कभी कभी डेड सेल ऐसे भी होते हैं, दे आर यू आर नॉट एबल टू सी देम, बट दे आर फॉलिंग डाउन, गिर रहे होते हैं। दैट इज़ द रीज़न। आपको पता है कि हम जिस भी चीज़ पे बैठते हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब आप रात को सोने लगें तो हमेशा अपनी बेड शीट को क्लीन करके सोएं। तो हमें ये तो पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वी हैव टू क्लीन आवर बेड शीट, बट एंड वी डू दैट, बट साइंस, बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम, व्हाट दे से कि हमें अपनी चीज़ों को क्लीन करके बैठना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप। वाई? बिकॉज as I said to you, from 30,000 to 40,000 डेड सेल्स आर फॉलिंग एक पर्सन के। तो जब फैमिली मेम्बर जितने भी हैं उनके डेड सेल ऐसे फॉल करेंगे, वी आर नॉट एबल टू सी दैम, तो अगर वो दोबारा से हमारी बॉडी में अटैच होते हैं तो दे आर नॉट गुड फॉर अस, वो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। दे कैन कॉज अदर प्रॉब्लम, उससे और भी ज़्यादा मसले हो सकते हैं। तो वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ क्लीन, और हम कोई भी काम करें वी शुड हैव टू कीप आवर क्लोज क्लीन। और जब आप किसी जगह पे बैठे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, यू हैव टू क्लीन योर बेड शीट केयरफुली, सो दैट देयर विल बी नो डेड सेल ऑन द स्किन और ऑन द बेड शीट। तो इस तरह आपने साइंस को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके पढ़ना होता है। सो दिस वाज द जनरल इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव टू यू अबाउट द स्किन, एंड यू आर हैविंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 5 को ओपन करो, देयर इज़ वन क्वेश्चन रिटन, what does your skin do? Like what does your skin do? तो I'm just erasing the heading. मैं यहाँ से heading सिर्फ erase करूँगी because these are the jobs of the skin. You have to write the same way. I'm writing the question here. I have written the question, what does your skin do? You have to write this question, and in answer you have to write the 4 jobs of the skin. You have to write the same way I have written it on the board, but be careful, you have to write first word capital. You will be writing, it gives a sense of touch, it holds everything inside the body, it maintains the body temperature, it maintains the body temperature, it protects our body from diseases, हमारी body को diseases से save करती है। So these are the points that you are supposed to write in the answer of the question, what does your skin do? This is all about today. You have to watch the video carefully, then you have to go through the reading of page number 4 and page number 5. After doing the reading, you have to write the question on the notebook, and then you are supposed to write this answer in the notebook. ठीक है, 4 points आपने write करने हैं। This is all about your today's science class, in which we have talked about the largest organ of the body, that is our skin. And what does our skin do? We have discussed about it in detail. So you, after writing the question, you have to memorize the answer as well. आपने इसका answer भी याद करना है। And then in your next class we will be continuing with the next topic, that is about human eye. It's very interesting. I'll show you the model of the human eye, and then we will learn about it. So let us just wrap up our lesson, that what we have learned in our today's science lesson. We have discussed that as the skin is having many organs in it, the largest organ of the body is skin. It has covered all our body, and it gives us the sense of touch. It also acts as a bodyguard and helps our body to protect from different kind of diseases. Also, it maintains the body temperature. It do not let our body to get very cold. Also, it do not let our body to get very hot or warmer. It just maintain the temperature and keeps the body normal. हमारी body को बिल्कुल normal रखती है। And we have also learned that हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, और वो सेल जो डेड हो जाते हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, दे हैव टू गो आउट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर जाना होता है उनको।
उसकी 2-3 फॉर्म्स हैं। वन दैट इज़ हैविंग द ड्राइनेस ऑन द स्किन, हमारी स्किन में जो ड्राइनेस होती है वो, जिसको हम मॉइस्चराइज करके ठीक करते हैं। जब हम मॉइस्चराइज करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डेड सेल को लाइफ दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो डेड स्किन तो वेस्ट होगी, हम न्यू सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज कर रहे हैं। सेम गोज़ विद द डैंड्रफ ऑन योर हेयर, उसके लिए आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है। डेड स्किन उतरने के बाद जो न्यू स्कैल्प है उसको सेफ रखने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं। और डेली बेसिस पर 30,000 से 40,000 तक डेड सेल हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। सो दिस इज all about your today's science class. You have to do this question and also learn it. See you in the next class with a new topic. Take care of yourself.